Hello everyone, welcome students to another class of fundamentals of zoology. In this course, we are going to discuss the basics of zoology as a science. In previous lectures, we have had a basic introduction to our subject, in which we discussed about properties of animal life and general definition of zoology. That what important properties an organism must have to ensure and endure life. Now, proceeding with our course, today we are going to discuss about some general specializations of zoology. We may call it branches of zoology or the domains of zoology, in which a student or a zoologist can specialize. Um, Obviously, as a science, this is one of the broadest sciences, or uh, you have to have mastery of a particular area of zoology in order to have impact on the entire scientific community. So there are although there are well lot of branches, but we will discuss some major branches or domains. So let's briefly discuss them. First, we have anatomy, study of the structure of entire organisms and their parts. It has been one of the uh, primitive branches of zoology, and even before medicine and human anatomy, scientists were, and not just scientists, because science is not that old, and humanity अगर हम बात करें, so human were curious about structures and functions of life, and so the study of structure of entire organisms and their parts. तो इसके अंदर फिर different divisions आते हैं. एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स को की स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी. So as a whole, a study of organisms and their different parts. Cytology, another important discipline, that is study of the structure and function of cells. So cell, the basic unit of life. So we study cell and its different structures and functions in cytology, also known as cell biology. Comparative genomics and bioinformatics, one of the advanced disciplines of zoology, not just zoology like general biology, but major role has been played by zoology. So study of the structure, function and evolution of the genetic composition of groups of animals using computer based computational methods. First of all, genomics and genetics is not that old, or Mendelian genetics. We date back to 1800s, and the 19th century, early 19th century, and in early 20th century we came to know about gene concept, and then structure of the cell, and then chromosomes, structure of DNA we came to know about in 1953 by Watson and Crick. इसी तरह with the discovery of microscope and other important tools, we came to know about genes and genetic information, chromosomes, chromatin material, and all that. So it's hardly a century ago. But computer, meanwhile, इसी के साथ साथ like माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, और उसके साथ डिफरेंट और डिस्कवरीज़, जिसमें हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का पता चला, उसी के साथ साथ कंप्यूटर की भी जो है एवोल्यूशन होती गई इसी दौर में. ठीक है, तो दोनों साइंसेस बेसिकली अब आजकल वी हैव प्लेंटी इंफॉर्मेशन अबाउट जीन्स एंड DNA, and tremendously
advanced techniques have been developed with the help of computers and computer-based computational methods. So a new field, bioinformatics, have been emerged as an important और बहुत एक इमर्जिंग फील्ड है बायोलॉजी की, जिसमें कंप्यूटर और कंप्यूटेशनल मेथड्स को बायोलॉजी और जोलॉजी के साथ उसको मर्ज करके एक नई फील्ड वो आई है, इमर्ज हुई है. ओके, इकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ early primitive as well as advanced, you can say, study of the interaction of organisms with their environment. Very important. My very own discipline wildlife belongs to basically ecology, जिसमें हम organisms की environment के साथ interaction और wild organisms की wildlife की study को हम mostly ecology के अंदर ही place करते हैं. और environment को study करना, organisms environment की interaction, ecosystems वगैरह वगैरह. Embryology basically the study of development of an animal from the fertilized egg to birth or hatching. Normally फर्टिलाइज्ड एग के बाद बर्थ और बर्थ के बाद हैचिंग, ये जितने भी एक प्रोसेस और डेवलपमेंटल स्टेप्स होते हैं एनिमल की, वी कॉल इट एम्ब्रियोलॉजी. पहले एम्ब्रियोलॉजी बड़ा सिंपल था कि उसको फर्टिलाइज्ड एग के बाद बर्थ और उसके बाद डेवलपमेंट. लेकिन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जो मॉडर्न डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, दैट नॉट ओनली डील्स विद फर्टिलाइज्ड एग बट ऑल्सो स्टेजेस बिफोर दैट, लाइक स्पर्म एंड एग्स की डिफरेंट उसके जो प्रोसीजर्स होते हैं, मैकेनिज़म्स होते हैं, स्पर्म आइडेंटिफिकेशन, स्पर्म रिकॉग्निशन वगैरह, बहुत सारे इसमें एडवांसमेंट आ गई है. तो एम्ब्रियोलॉजी को नाउ डेज वी कॉल, और उसमें इतनी एडवांसमेंट आई है कि बहुत सारे न्यू आर्टिफिशियल टेक्निक्स डेवलप हुए हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, तो जो कि सिर्फ एम्ब्रियोलॉजी के डेफिनेशन में फॉल नहीं करते. वी नाउ कॉल इट developmental biology. Then genetics, one of the most popular fields of biology, study of the mechanisms of transmission of traits from parents to offspring. हमने फर्टिलाइजेशन की, बर्थ की बात की, तो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दे रिजेंबल देयर पेरेंट्स and also their siblings. So this is basically the transmission of traits. Trait we call traits. Traits कैसे कहते हैं, जहाँ भी ये word आएगा, it means genetic characteristics, genetic properties of an individual, either it is a plant or animal. So the study of the mechanisms of the transmission of traits from parents to offspring, ये किस मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, वी कॉल इट जेनेटिक्स. सो इट डील्स विद क्रोमोसोम्स, इट डील्स विद न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए एंड ऑल दैट. ओके. हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़. एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स से बनती है, लाइक स्किन है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं. ये सारे क्या है, बेसिकली दे आर फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़. सो टिश्यू को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज़ कॉल्ड अ टिश्यू. फॉर एग्जांपल, आपकी अपर स्किन है तो इट हैज़ सेम सेल्स विद द सेम फंक्शन. इसी तरह बोन्स, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक, heart, liver, lungs, all these organs are made up of same tissue, same group of cells performing same function. So the study of individual tissues is called histology. Molecular biology, one of the we क्या कह सकते हैं, revolutionary field of biology is molecular biology, because with the advancement of microscope and all, we are able to deal with those things in biology and zoology which we were unable even to think of a few centuries ago. So the study of subcellular details of structure and function, इसमें molecular biology इतना एक वास्ट है, इतना advanced, vast and applied field, इसको आपके applicable. This molecular biology is applicable to
ऑल द ब्रांचेस, ठीक है, आप हर फील्ड में इसको यूज़ कर सकते हैं। सब सेलुलर डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, चाहे वो जेनेटिक्स हो, चाहे वो एम्ब्रियोलॉजी हो, इकोलॉजी हो, साइटोलॉजी हो, जो भी हो, जब आप सेल के अंदर घुसते हैं आप माइन्यूट स्ट्रक्चर्स, डीएनए, इसमें फिर बहुत सारी फील्ड्स हैं, ठीक है, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और बहुत सारी हैं, ठीक है। तो वो स्टडीज़ जो कि हम मॉलिकुलर बेंजामिन मतलब कि इट डील्स विद माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़, ठीक है। सब सेलुलर का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ, इट मीन्स कि इट इज़ ऑन द वेरी माइन्यूट और डिटेल्ड लेवल, हम सेल के अंदर जाते हैं और स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। सो पैरासाइटोलॉजी अनदर स्टडी ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन और ऑन अदर organisms at the expense of the host। अच्छा, पैरासाइट्स, स्टडी ऑफ पैरासाइट का वर्ड आपने बहुत सुना होगा और जनरल लाइफ में बहुत आप ये सुनते रहते हैं कि पैरासाइट बेसिकली क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं एंड दे हार्म देम, ठीक है। तो इनको बेनिफिट मिलता है और जो दूसरा होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसको नुकसान मिलता है किसी भी फॉर्म में, एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट, मतलब कि वो या उससे शेल्टर लेता है या फूड लेता है या कोई और, ठीक है, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो अच्छा, अब पैरासाइटोलॉजी जो हम एज अ डिसिप्लिन पढ़ते हैं तो हम नॉट जस्ट स्टडी ओके लाइक ऑल पैरासाइट्स, हम उसको स्टडी करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंटली दोज हु हैव सम कनेक्शन टू ह्यूमंस, और उसमें फिर डिजीज़ का फैक्टर आता है पैथोलॉजी, कि वो पैरासाइट्स जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट्स प्लांट्स को हम बॉटनी में डिस्कस करते हैं। डीलिंग विद एनिमल्स, वेटनरी मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या वाइल्ड एनिमल्स के अंदर, या जो है फिशरीज़ में हमारे पास हमारे फ़िश जो है वो डिज़ीज़, मेरा अपना जो है बैचलर्स का प्रोजेक्ट दैट वाज ऑन फ़िश पैरासाइट्स एंड फ़िश पैथोलॉजी। तो लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो जैसे मलेरिया हो गया, लेशमेनिया हो गया, और बहुत सारे पैरासिटिक डिजीज़ हैं, डेडली पैरासिटिक डिजीज़ हैं, जिसके लिए पैरासाइट्स की स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स, तो फिर उसमें डिफरेंट जो है एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, और दिस इज़ आल्सो अ डाइवर्स फील्ड। Systematics is the another interesting field, study of the classification and the evolutionary interrelationship among animal groups. We mostly call it taxonomy. आजकल उसको systematics कहते हैं। Systematics and taxonomy is the field of zoology in which we study animals in their evolutionary relationship, how animals are evolutionary related। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो ज़रा हम एक्सटेंड करेंगे इसको इसी फील्ड की तरफ, बिकॉज इट इज़ द वेरी, इसको हम प्योर जोलॉजी कहते हैं। नॉर्मली आपने सुना होगा प्योर जोलॉजी का वर्ड, जब हम वी टॉक अबाउट प्योर जोलॉजी एज अ फील्ड, सो वी रेफ़र टू सिस्टमेटिक्स एंड टेक्सोनॉमी, जिसमें हम एक्चुअली एनिमल्स को स्टडी करते हैं कि फ्रॉम वेयर दे कैम, विच एनिमल्स दे बेसिकली कोरिलेट टू, एंड हाउ एवोल्यूशनरी दे आर इंटर रिलेटेड। अब एवोल्यूशनरी का वर्ड आपको अगर ने सुना बहुत होगा, हम उसकी तरफ जाएंगे डिटेल में। ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन ज़ूलॉजी बाय टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ मतलब हमने सिस्टमेटिक्स की बात की, तो उस बेस में फिर एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में। हम क्लासिफिकेशन अपना एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उस बेस पे कुछ फील्ड्स हैं जिसको हम अप्लाइड फील्ड्स कह सकते हैं ज़ूलॉजी के। तो उसमें एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। जितने भी इंसेक्ट्स की स्टडीज़ हैं वी कॉल इट एंटोमोलॉजी, और उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी कलेक्शन, उनके डिफरेंट रोल्स। फिर है हर्पेटोलॉजी स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स।
इन ग्रुप के एनिमल्स को की स्टडी को हम हर्पेटोलॉजी के इक्थियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फिशेस। अच्छा, अब इक्थियोलॉजी एंड फिशरीज़ में एक बेसिक डिफरेंस है। इक्थियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ all the fishes, ठीक है, either they are marine, either they are fresh water fishes, उनकी life cycles, उनकी morphology, उनका behavior, all that is studied in ichthyology. While in fisheries we only study the cultured fishes, वो fishes जिनको हम farming उनकी करते हैं और उनको ज़्यादा को produce करके to use it for economic purpose, हम उनको बिज़नेस पर्पज़ के लिए जब फ़िशेस को हम ग्रो करते हैं, उनको पॉन्ड्स में रखते हैं, उनको पॉन्ड्स में पालते हैं, सो उसको हम फिर कहते हैं दैट इज़ अप्लाइड फील्ड, और इसको हम फिशरीज़ कहते हैं, ठीक है, इन एक्वाकल्चर एंड फिशरीज़। और इक्थियोलॉजी ज़रा डाइवर्स है। मैमोलॉजी स्टडी ऑफ मैमल्स, ठीक है, दिस इज़ अनदर फील्ड, और मोस्टली वाइल्ड लाइफ जो मेरा अपना फील्ड है, दैट इज़ दैट मोस्टली डील्स विद मैमोलॉजी, आइदर ऑल्दो इट आल्सो डील्स विद हर्पेटोलॉजी, और हम ये सब पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली जो है सो इट डील्स विद स्टडी ऑफ मैमल्स। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स एंड प्रोटोजोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स क्या है? यूनिसेलुलर एनिमल्स, वी विल डिस्कस इट लेटर। ओके, सो today we are going to discuss about zoology as a branch of science with two perspectives, evolutionary perspective and then ecological perspective, ठीक है। दो बेसिक पर्सपेक्टिव्स से, दो नुक्ता नज़र से हम उसको देखेंगे ज़ूलॉजी को, कि एक इसका है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के पास्ट से लेकर, हिस्ट्री से लेकर अभी तक, मतलब एक बैकग्राउंड, एक ओरिजिन हम पढ़ेंगे लाइफ का और एनिमल लाइफ का, ठीक है। और फिर है इकोलॉजिकल के आजकल मतलब हमारे एनवायरनमेंट के साथ करंटली क्या लिंक है ज़ूलॉजी का, तो पास्ट एंड प्रेजेंट को हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अगर हम पढ़े अबाउट एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, तो एवोल्यूशन क्या है, ओके, उससे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एनिमल्स शेयर अ कॉमन एवोल्यूशनरी पास्ट एंड एवोल्यूशनरी फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस देयर हिस्ट्री। जितने भी एनिमल्स हैं, दे शेयर अ कॉमन एवोल्यूशनरी पास्ट, उनका एक सेम ओरिजिन है, ठीक है, and evolutionary forces that influence their history. Evolutionary processes are remarkable for their relative simplicity. अच्छा, अब यहाँ पे evolution क्या है, थोड़ा सा सिंपली इसको डिस्कस करते हैं। Although this is one of the most discussed branches or disciplines, not just of zoology but science में अगर हम देखें तो हर फील्ड के कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि फ़िज़िक्स में आप देखते हैं तो आप न्यूटोनियन फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, आप जो है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं, इस तरह न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है, क्वांटम फ़िज़िक्स है, बड़े बड़े। इसी तरह ज़ूलॉजी के अंदर आपको कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स मिलते हैं जो हम उसमें हम एवोल्यूशन इज़ द मोस्ट एस्टोनिशिंग फील्ड ऑफ ज़ूलॉजी, और नॉट जस्ट ज़ूलॉजी, ऑफ साइंस। अच्छा, अब है क्या एवोल्यूशन? हरफ़ाम में इसको इर्तिका कहते हैं, उर्दू में इसको इर्तिका कहते हैं, इर्तिका, एवोल्यूशन। व्हाट डज़ इट मीन? सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो हम लाइफ इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म जो हम देखते हैं आज, हाउ इट केम टू दिस फॉर्म। अब ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ ये सारे एनिमल्स अपने इस फॉर्म में प्रोड्यूस हुए थे, नो, दे हैड अ पास्ट ऑफ कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन, ठीक है। तो ये प्री हिस्टोरिक टाइम, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ जो है उसका इब्तिदा होता है, एंड देन आज तक जो हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ देखते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह, ऑल दे हैव पास्ट
थ्रू द स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, इर्तिका, ठीक है। तो इसको हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। आज हम इसको ज़ूलॉजी के साथ थोड़ा टच देंगे कि बेसिकली है क्या। इसमें डिबेट्स बहुत हैं, इसमें मोस्टली ये रिलीजन के साथ बड़ा इसका वो है, टसल आता है विद द थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज़म। रिलीजन ये कहता है कि जो प्रेजेंट लाइफ फॉर्म है, ह्यूमंस है, एंड दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड एज इट इज़ इन इट्स फुल एंड फाइनल फॉर्म। जबकि एवोल्यूशन कहता है कि नो, ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, दे आर बेसिकली क्या है, दे हैव अ कॉमन ऑरिजिन। वो एक ही जो है सेल से प्रोड्यूस हुए, पहले बैक्टीरिया था, हम उसकी तरफ जाएंगे एनी हाउ। बट दे बोथ एवोल्यूशन एंड क्रिएशनिज़म, दे आर बोथ थियरीज़। और इसमें दुनिया जो है स्प्लिट हुई है, साइंटिस्ट जो है वो इन दोनों थियरीज़ के अंदर स्प्लिट हुए हैं, और उसके डिटेल में हम अभी नहीं जा सकते बिकॉज़ अगर हम दोनों में डिटेल में जाएंगे तो ये एक डिबेट है, साइंटिफिक डिबेट है जो सेंचुरीज से चला आ रहा है। अच्छा, लेकिन मॉडर्न कुछ ऐसा है कि कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको, जो पहले इसके कायल नहीं थे और वो एवोल्यूशन पे वो ज़्यादा वो करते थे कि ओके ह्यूमंस, अच्छा फिर ये इसमें है सेम स्पीशीज़, विद इन द स्पीशीज़ एवोल्यूशन एंड बिटवीन द स्पीशीज़ एवोल्यूशन। तो विद इन द स्पीशीज़ एवोल्यूशन को तो क्लियरली रिलीजन भी सपोर्ट करता है कि विद इन, अब फॉर एग्जांपल ह्यूमंस एज ए स्पीशीज़ हैं तो इसके अंदर बहुत एवोल्यूशन, और अगर ये अपने इस फॉर्म में है तो अगर ये अपने इस फॉर्म में मौजूद है तो आया ये किन किन स्टेजेस से गुज़रा है। तो दिस इज़ इंटर स्पेसिफिक एवोल्यूशन और इंट्रा स्पेसिफिक एवोल्यूशन। और इंटर स्पेसिफिक एवोल्यूशन के एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़, तो ह्यूमन भी दूसरी स्पीशीज़ से एराइज हुआ है, ये कहता है एवोल्यूशन। और क्रिएशनिज़म कहता है कि नो, ह्यूमन के अंदर एवोल्यूशन हुई है स्पीशीज़ के अंदर, लेकिन ये और ओरिजिनेट हुआ था किसी दूसरी स्पीशीज़ से ओरिजिनेट नहीं हुआ है, बल्कि ये क्रिएट हुआ है इन इट्स फुल फ्लेज्ड फॉर्म। और कुछ थियरीज़ हैं जिसको कहते हैं, अब जैसा कि कुरान में है कि हल अता सूरह दहर की पहली आयत जो है वो कहती है कि हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर, कि आया इंसान को नहीं पता कि वो किन किन स्टेजेस से गुज़रा है। अब दहर जो है अरबी का वर्ड है, इट मीन्स, दहर के मायनी एक छोटा टाइम और टाइम स्पेन नहीं, बल्कि दहर कहते हैं ज़माने को। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो कुरान भी कहता है कि इंसान के ऊपर बहुत बड़े बड़े अदवार गुज़रे हैं, दौर गुज़रे हैं, ठीक है। तो वही एवोल्यूशनरी स्टेप्स, वही एवोल्यूशनरी टाइम पीरियड्स जो गुज़रे हैं, हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी पढ़ेंगे, उसमें भी ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो एक थ्योरी है आजकल, मॉडर्न थ्योरी है, दैट इज़ इंटेलिजेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट डिज़ाइन। अच्छा, इसकी तरफ हम बाद में जाएंगे, हम इसके डिटेल में नहीं जाते। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एवोल्यूशनरी प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि अच्छा एवोल्यूशन एज अ प्रोसेस अगर हम देखें तो बिसाइड द डिबेट, इसको साइड पे रखते हुए, इट हैज़ मच डिटेल्ड सब्सटेंस टू अटैच टू इट, और इसको हम किसी दूसरे लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे क्रिएशनिज़म एंड एवोल्यूशन को। लेकिन यहाँ पे हम एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो हम देखते हैं कि वो बेसिकली क्या है। सो दीज प्रोसेसेस, अच्छा इस एवोल्यूशन के थ्रू मकसद कहने का ये था कि जो एनिमल्स हैं वो आज जिस डिफरेंट फॉर्म में हमें मिल रहे हैं, सो ये दिस इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन के रिज़ल्ट में बने हैं। So these processes have resulted in estimated 4 to 10 million species of animals living today. अच्छा, 4 to 10 million species of animals आजकल जो है ये estimated है, ठीक है, अंदाज़तन कि दुनिया में इतनी स्पीशीज़ मौजूद हैं। अब उनमें से कितनी फाइंड हुए हैं, कितनी को डॉक्यूमेंट किया गया है, डिस्क्राइब दरियाफ्त हुए हैं, सिंपल अगर हम कहें तो ओवर 1 मिलियन एनिमल स्पीशीज़ हैव बीन
डिस्क्राइब्ड और डिस्कवर्ड हुए हैं 1 मिलियन एनिमल स्पीशीज़, ठीक है, आज तक। और उनमें मैनी मोर अबाउट 90% जो है वो पास्ट में एग्जिस्ट करते थे जो आजकल नहीं है। दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वो स्पीशीज़ हैं जो कि दुनिया में पहले मौजूद थी, आजकल वो बिल्कुल उनकी नस्ल जो है, उनकी स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है। एंड दे आर नो मोर फाउंड, लाइक डायनासोर्स हो गए और भी बहुत सारी। तो 90% जो है ये डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ में दे आर एक्सटिंक्ट, दे आर नो मोर फाउंड। तो आजकल जो मौजूद है अच्छा, ये 1 मिलियन फाउंड है अब, जो कि 4 to 10 मिलियन तक इस्टिमेटेड है, अंदाज़तन मौजूद है। तो अब ये दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट, ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो कि दे आर येट टू बी फाउंड। इसको हम कहते हैं क्रिप्टोजोलॉजी, क्रिप्सिस। क्रिप्टोजोलॉजी क्या है? वो जोलॉजी की वो फील्ड जिसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जो अनडिस्कवर्ड स्पीशीज़ हैं उनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो साइंटिस्ट्स लगे हुए हैं और जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट्स हैं और टेक्सोनोमिस्ट्स हैं एंड सिस्टमेटिक बायोलॉजिस्ट्स हैं, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड रिसर्चेज हो रही है और दिन ब दिन डेली बेस पे बहुत सारी स्पीशीज़ डिस्कवर हो रही हैं। सो जो अनडिस्कवर्ड है वी कॉल इट क्रिप्टोजोलॉजी। इट इज़ arised from the word crypsis। crypsis का मतलब है छुपना, ठीक है। ये एक एनिमल बिहेवियर में भी आप पढ़ते हैं कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि प्रीडेटर्स से छुपने के लिए कुछ बिहेवियर्स करते हैं। सो उसको हम क्रिप्सिस कहते हैं और उसी से निकला है क्रिप्टोजोलॉजी, लाइक वो स्पीशीज़ जो कि हमसे छुपी हुई हैं, जो अनडिस्कवर्ड है। ओके, सो zoologists must understand evolutionary process if they are to understand what an animal is now। beside religious debates, कुछ बिलीव क्रिएशनिज्म पे करते हैं या कुछ एवोल्यूशन, बट बोथ आर थियरीज। इसमें डिबेट है, लेकिन एवोल्यूशन से डिनाई करना इम्पॉसिबल है बीइंग अ zoologist और बीइंग अ साइंटिस्ट, बिकॉज इट इज़ लाइक ओपन लाइक अ डे लाइट, ठीक है। आप अगर दूसरे एनिमल्स में देखें, ऑर्गेनिजम्स में, सो यू कांट डिनाई इट, यू सिंपली कांट डिनाई इट, ठीक है। सो अब और एवोल्यूशन बेसिकली मेजर दो में डिवाइड हुआ है, केमिकल एवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो सबसे पहले केमिकल एवोल्यूशन ये है कि लाइफ बिफोर फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, जो कि एक बैक्टीरिया था अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन। तो बैक्टीरिया कैसे बना? फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, एटम्स कंबाइन हुए, उनसे मॉलिक्यूल्स बने, उनसे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बना। तो सेल के बनने तक जो प्रोसेस है इसको हम केमिकल एवोल्यूशन कहते हैं कि केमिकल्स इवॉल्व हुए थ्रू आउट टाइम और उनसे ऑर्गेनिज्म बना। फिर ऑर्गेनिज्म जब फर्स्ट सेल बना, जिसको कहते हैं आर्किया, आर्किया वाज द फर्स्ट बैक्टीरिया जो कि बना था, एग्जिस्ट हुआ था लाइफ में, और उससे फिर बैक्टीरिया बना। तो आर्किया जो फर्स्ट बैक्टीरिया था, दैट वाज वहाँ से लेकर के अभी तक जो हायर एनिमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस तक, इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड ऑल द एडवांस्ड मैमल्स, ये जो है वी कॉल इट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है, लाइक ऑर्गेनिज्मल एवोल्यूशन। सो इट इज़ द चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनकी पॉपुलेशंस में जेनेटिक मेकअप के अंदर, उनके अंदर जीन्स में चेंजेस, और वो फिर उसको हम एवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है? ऑर्गेनिज्मल लेवल पे और फिर जेनेटिक लेवल पे, ठीक है, सेलुलर लेवल पे, ऑर्गेनिक लेवल पे जो एवोल्यूशन है उसको हम स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम है एक साइंटिस्ट का, दैट इज़ डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक अलग वो है, एक साइंटिस्ट था। ही गेव द थियरीज ऑफ एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन में उसने एक इम्पॉर्टेंट थियरी दी थी, नेचुरल सिलेक्शन। जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो उसका इम्पॉर्टेंट थीम है, वो डार्विन ने दिया था इन 1859। उसके लिए अपनी स्टोरी है, वो एक वर्ल्ड टूर पे निकला था विद HMS बीगल, एक शिप था जो कि वो ट्रेड करता था थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो डार्विन एज अ स्टूडेंट, एज अ बायोलॉजिस्ट गया था उनमें, और ही डिस्कवर्ड मैनी
पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वहाँ जब उसने डिफरेंट स्पीशीज़ और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को स्टडी किया तो उसने ये थ्योरी पेश की कि ये जो लिविंग स्पीशीज़ हैं जितने भी है, दे आर बेसिकली नेचुरली सेलेक्टेड, सो दिस इज़ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ ये कॉन्सेप्ट, और सिंस दैट टाइम बायोलॉजिस्ट्स हैव बिकम कन्विंस्ड दैट एवोल्यूशन अकर्स, और डार्विन के बाद लोग इस पे बिलीव करने लगे कि यस एवोल्यूशन डज अकर, लाइक देयर इज़ हेल लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, ऑर्गन्स में जिसको हम कहते हैं फिर कंपैरेटिव एनाटमी, और फिर जेनेटिक एडवांसमेंट के बाद जीन सीक्वेंसिंग, और उससे पता चला कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो आपस में रिलेटेड है। So evolution does occur. The mechanism proposed by Darwin has been confirmed and now serves as nucleus of our broader understanding of evolutionary changes. So Darwinian genetics, Darwinian theories of evolution, वो हम किसी और टाइम डिटेल में, ये एक टॉपिक है, इसको इस तरफ हम जाएंगे। अभी जो है, अच्छा, तो ज़ूलॉजी और एवोल्यूशन का बड़ा एक कंक्रीट रिलेशनशिप है, कहने का मकसद ये है। और फिर उसमें यह है कि एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी है स्केल ईटिंग सिक्लिड की, ये कुछ फ़िशेज़ हैं, और इनमें इंटरेस्टिंग एक बिहेवियर है, वो ये है कि ये फ़िशेज़ क्या करते हैं कि अफ्रीकन फ़िशेज़ हैं, और ये दूसरे फ़िशेज़ के बॉडी से स्केल्स, जो उनके ऊपर वो स्केल्स होते हैं, वो खाते हैं एज अ फूड। ठीक है, तो इन स्पीशीज़ में दो टाइप होती हैं, एक वो होते हैं जिनका मुंह राइट की तरफ मुड़ गया होता है, बेंड हुआ होता है, और हाफ पॉपुलेशन ऐसे होती है जिनका राइट की तरफ। तो सो दैट के जो प्रे एनिमल्स हैं, प्रे फिशेज़ हैं, जिनसे ये स्केल्स खाते हैं, तो दोनों तरफ से उसके स्केल्स, अगर ऐसा ना हो कि जो फिशेज़ राइट से स्केल्स खाते हैं उनके, तो उनके जो बीक्स हैं, जो स्नाउट्स हैं, माउथ है, वो राइट की तरफ बेंड हुआ होता है, और जो लेफ़्ट से खाते हैं तो वो लेफ़्ट। तो उसको बैलेंस रखने के लिए कि अगर दोनों एक तरफ से खाते तो ये जो प्रे स्पीशीज़ है ये ख़त्म हो जाती। ठीक है, एक साइड से उसकी बॉडी डैमेज हो जाती। तो ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये फिशेज़ जो है ये हाफ राइट वाइड उनकी वो बेंड है, उनका जो स्नाउट है, और हाफ का लेफ़्ट की तरफ। तो दिस इज़ हाउ नेचर कंट्रोल्स द पॉपुलेशन। और एवोल्यूशनरी, ये एवोल्यूशन है कि जो न्यू बर्न होते हैं फिशेज़ के, उनमें भी ये जो है इसी तरह बेंडिंग होती है राइट वर्ड और लेफ़्ट वर्ड। सो नाउ दिस इज़ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम उसकी डिटेल में अभी नहीं जा सकते। बट अच्छा, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन इस बेस पे कि डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स के, तो उनकी क्लासिफिकेशन फिर इस बेस पे होती है कि डीएनए। ठीक है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं और फिर उसको हम रिलेट करते हैं। सो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर मोर closely related if they share more of their genetic material with each other than with individuals in other groups. अच्छा, आजकल हम एवोल्यूशन, हमारे पास क्यों इतना बड़ा एविडेंस है, हम क्यों कहते हैं कि एवोल्यूशन से आप डिनाई नहीं कर सकते? बिकॉज विद एडवांसमेंट इन जेनेटिक टेक्निक्स, तो डीएनए को हम सीक्वेंस कर सकते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग एक अलग टॉपिक है, लेकिन उसमें यह है कि आप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, एनिमल्स के डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट स्पीशीज़ के एनिमल्स का डीएनए लेकर उसको सीक्वेंस करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस जिनकी पूरी डीएनए सीक्वेंस हो चुकी है, तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को भी हम आपस में कंपेयर करके उनकी डीएनए मैच करके हम कह सकते हैं कि दे आर हाउ मच दे आर रिलेटेड। सो जितना क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल होगा उतना ही they will share more genetic material. Like for example, you are more closely related to your brothers or sisters than to your cousins for the same reason. ठीक है, अब जितने ब्रदर सिस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोज रिलेटेड होते हैं शक्ल में भी, आदात में भी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू देयर कजन्स बिकॉज ऑफ शेयरिंग द सेम डीएनए. Because DNA determines most of your physical traits, you will more closely resemble your brothers or sisters. इसी तरह
एक और एग्ज़ाम्पल है फिशेस में से, जो कि है सिक्लिड्स। वही सिक्लिड फिशेस हैं, ये अफ्रीकन फिशेस हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ फिशेस, एक टाइप की फिशेस है जिसको सिक्लिड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये सिक्लिड्स जो है, इनमें एक ब्रेक थ्रू हुई, एवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू हुई है, और वो ये है कि पहले थ्रू जेनेटिक स्टडीज़ ये पाया गया कि 100,000 years ago कुछ फिशेस थे जो कि सिक्लेट फिशेस थी, सॉरी, for example, the origin of Lake Victoria's cichlid species had been traced to an invasion of ancestral cichlids, probably from Lake Kivu approximately 100,000 years ago. कुछ सिक्लिड फिशेस जो हैं वो लेक विक्टोरिया से माइग्रेट होके और वो आए थे डिफरेंट लेक्स में, उनकी इन्वेजन हुई, वो उधर इनहेबिट हुए, ठीक है। टुडे लेक क्यूव हैज़ ओनली 15 स्पीशीज ऑफ सिक्लिड्स. दिस इन्वेजन कंटिन्यूड अप टू 40,000 years ago when volcanic eruptions isolated the fauna of Lake Kivu and Victoria. तो इन दोनों के बीच ये आइसोलेशन हुई, दोनों लेक्स के बीच. दैट टाइम पीरियड इज़ लॉन्ग फ्रॉम द perspective of human evolution, human lifetime, but it is a blink of the eye from the perspective of evolutionary time. अच्छा, ये जो टाइम है 40,000 years ago and 100,000 years ago, अगर वैसे तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ह्यूमन लाइफ के हिसाब से, लेकिन ये एवोल्यूशन के हिसाब से इट्स अ ब्लिंक ऑफ आई. और इसमें क्या हुआ, इतने कम टाइम में more than 500 species of cichlids inhabited Lake Victoria by the beginning of the 20th century. 20th century के beginning में कितनी species से बढ़ के आप देख सकते हैं 15 species, ठीक है. और now more than 500 species जो है वो arise हुई आजकल, ठीक है, जो मौजूद है. तो many of these species evolved in fewer than 15,000 years. तो 15,000 years के टाइम, जो कि एवोल्यूशनरी टाइम के हवाले से बहुत कम टाइम है, इसमें इतनी स्पीशीज़ जो है वो अराइज हुई, ठीक है. सो दिस वेरी रैपिड एवोल्यूशन इज़ फिनोमिना रेफर्ड टू एज एवोल्यूशनरी प्लास्टिसिटी. तो क्या है एवोल्यूशन? अगर कहीं ऑब्ज़र्व किया गया है कि इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ अराइज हुई इतने कम टाइम में, सो दैट इज़ द अफ्रीकन सिक्लिड फिशेस, ठीक है. पूरी बात का मकसद ये था कि एवोल्यूशन को विटनेस किया गया है स्पीशीज़ में थ्रू जेनेटिक स्टडीज़ और आजकल एडवांस टेक्निक्स के थ्रू. और इट इज़ फाउंड दैट कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ एक ही फिशेस के वो अराइज हुए हैं इतने कम टाइम में. ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा थोड़ा सा डील करता है ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस के एनिमल्स को. फिर हम जब स्टडी करते हैं कि ओके दे आर डिफरेंट, दे आर इन डिफरेंट फॉर्म्स. अनदर टेक्निक वी कॉल इट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. तो हम एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को, स्पीशीज़ को अगर जब हम स्टडी करते हैं, सो वी classify them, ठीक है. and it was started by a Carl von Linné. उसने, एक साइंटिस्ट ने इसको प्लांट्स के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम ये मेथड डिस्कवर किया था. और ये इसमें क्या है कि नेमिंग सिस्टम है ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल बोथ, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको बाइनोमियल साइंटिफिक नेम दिया जाता है. और 2 पार्ट नेम होता है, ठीक है. और एक
सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम फिर, जिनको हम स्पीशीज़ कहते हैं, तो उनके दो नाम होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज़ जीनस नेम एंड सेकंड पार्ट इज़ द स्पीशीज़ एपिथेट, उसको कहते हैं स्पेसिफिक नेम वी कॉल इट। फॉर एग्जांपल जो हमने फिशेज़ की बात की, दैट इज़ अफ्रीकन सिक्लिड स्केल ईटर, सो इट है द नेम पेरिसोडस माइक्रोलेपिस। अब इस स्पीशीज़ के जितने इंडिविजुअल्स होंगे, मतलब इस स्पीशीज़ का नाम है पेरिसोडस माइक्रोलेपिस। सो पेरिसोडस इज़ जेनेरिक नेम, जीनस नेम एंड माइक्रोलेपिस इज़ स्पीशीज़ नेम। अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या है हायरार्की, ये जो सिस्टम है नेमिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, ये है कि अब सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स होंगे ऑफ द सेम स्पीशीज़, लाइक फॉर एग्जांपल माइक्रोलेपिस, फिर है जीनस। तो ये कैटेगरीज हैं स्पीशीज़ नेम, ठीक है। देन थोड़ा उससे ऊपर ग्रुप होता है जीनस, देन दे बिलोंग, स्पीशीज़ बिलोंग टू द सेम जीनस, then genus belong to a family belong to a same order, then same orders belong to a class, and class belongs to a phylum, and phylum belongs to a broader kingdom, ठीक है। like kingdom animalia, kingdoms हमारे पास फिर 5 हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, लाइक किंगडम Monera for bacteria and cyanobacteria, kingdom Protista for protists, unicellular organisms which have both like plants and animals. So kingdom Protista, kingdom Monera, kingdom Fungi, जिसमें फंगस जितने भी है फंजाई उसमें प्लेस्ड है, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। सो ये वी डील विद किंगडम एनिमेलिया। तो एनिमेलिया के अंदर जितने भी फिर लिविंग आपको ह्यूमंस के समेत जितने भी एनिमल्स हैं, दे आर प्लेस्ड इन दिस किंगडम, एंड देन एट द एंड वी हैव डोमेन। एंड डोमेन क्या है, किंगडम से भी ऊपर का एक लेवल का है, और डोमेन्स हमारे पास बेसिकली 3 है। यहाँ पे जो हम डोमेन स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ यूकेरिया। डोमेन्स बेसिकली अर्ली लाइफ, जैसे हमने डिस्कस किया अभी के जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ था दैट वाज एन बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम था आर्किया। सो आर्किया जो है दैट वाज द फर्स्ट डोमेन जहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई। फिर आर्किया जो है उससे 2 वो बने मज़ीद लाइफ फॉर्म्स। फर्स्ट वाज आर्किया के बाद था यू बैक्टीरिया जो आजकल हम किंगडम मोनेरा जैसे हमने पढ़ा, बैक्टीरिया जितने भी है ट्रू बैक्टीरिया वी कॉल देम यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया का अपना एक बेसिकली डोमेन भी है, ठीक है, वो उस डोमेन से आए हैं जिसको हम कहते हैं किंगडम मोनेरा। सो आर्किया, देन यू बैक्टीरिया एंड देन यूकेरिया। यूकेरिया में यूकेरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया यू नो, अच्छा सॉरी नॉट यूकेरिया, प्रोकेरिया, यहाँ पे थोड़ी मिसिंग हो गई है। आर्किया जहाँ से आगे फिर बैक्टीरिया बना, और बैक्टीरिया किस से बिलोंग करता है, प्रोकेरिया। प्रोकेरिया मीन प्रोकैरियोट्स जिनमें एक न्यूक्लियस नहीं होता, लाइक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया उस डोमेन से बिलोंग करता है, प्रोकेरिया से। एंड देन यूकेरिया जो है ट्रू, और कैरिया मीन कैरियन मीन न्यूक्लियस, सो दे हैव न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो यूकेरियोट्स एक बड़ा ग्रुप है जिसमें ये बाकी जो किंगडम्स हैं बैक्टीरिया के अलावा, फंजाई, प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे बिलोंग टू द यूकेरिया। और जो एक बैक्टीरिया है दैट बिलोंग्स टू प्रोकैरियोट्स, ठीक है। एंड देन अर्ली फॉर्म आर्किया। सो ये हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है। और हाउस फ्लाई यहाँ पे एग्जांपल है, ये आप देख लें। द क्लासिफिकेशन ऑफ अ हाउस फ्लाई, cichlid fish and human illustrate how the classification system depicts degree of relatedness। अच्छा, हम इसको एवोल्यूशन के साथ क्यों देखते हैं कि they all belong to the same ancestor, ठीक है।
दे बिलोंग टू द सेम किंगडम एनिमेलिया. फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई जो है जो मक्खी है, इसका स्पेसिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस इज मस्का, फैमिली इज मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा डिप्ट्रा सॉरी, क्लास इज हेक्सापोडा, फाइलम इज ऑर्थ्रोपोडा. ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आते हैं जॉइंटेड लेग्स के जितने भी हैं. अच्छा, इसी तरह हॉर्स फ्लाई एक और इंसेक्ट है, फ्लाई की एक किस्म है. ठीक है, सो हॉर्स फ्लाई इज टेबेनस ओपेकस, बिलोंग टू द जीनस टेबेनस, फैमिली टेबेनिडी, ऑर्डर इनका आप देखें सेम है, फैमिली जीनस स्पीशीज डिफरेंट, ऑर्डर सेम डिप्टेरा, क्लास हेक्सापोडा. हेक्सा मीन 6 legs. ठीक है, पोडा मीन लेग्स एंड हेक्स मीन 6. सो हेक्सापोड्स आर द insects with 6 jointed legs. ओके, देन सिक्लिड फिश जो है, जो हमने अभी पढ़ा, तो उसका स्पीशीज़ नेम है पेरिसोडस माइक्रोलिपिस, बिलोंग टू द जीनस पेरिसोडस. देन फैमिली सिक्लिडी, ऑर्डर पर्सिफॉर्मिस एंड क्लास ओस्ट्रिक्थीज और बोनी फिशेज. लेकिन दे हैव द सेम फाइलम कॉर्डेटा विद ह्यूमंस. अब ह्यूमन क्या है? होमो सेपियंस. हमारा जो है स्पीशीज नेम इज होमो सेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेट्स, क्लास मैमेलिया and phylum chordata. So this is how all the organisms, all the animals you see around, they are related, taxonomically related, और कुछ point पे जा करके they belong to the same kingdom Animalia. So this is how evolution and zoology are related. Evolution is a detailed topic जिसको हम फिर discuss करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको wind up करते हैं. So evolutionary theory has affected zoology like no other single theory. No need to explain it. It has impressed scientists with fundamental unity of all life. As the cichlids of Africa illustrate, evolutionary concepts hold the key to understanding why animals look and act in their unique ways, live in their particular geographical regions and habitats, and share characteristics with other related animals. तो इसको अगर हम वाइंड अप करें इस सेक्शन को, तो इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं कि द नॉलेज ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हेल्प्स zoologists understand the great diversity of structure and function present in animals. Like this is the evolutionary theory or the process that helps us to understand the diversity of structure and function. Evolution also helps zoologists understand relationship among animals. Very important. These evolutionary relationships are ultimately based on shared DNA. इनके बीच DNA शेयर होती है, एंड वो इंफॉर्मेशन दैट रिजल्ट इनटू द रिलेटेडनेस अमंग दोज एनिमल्स, दे आर रिफ्लेक्टेड इन इनहेरिटेड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब वो उसका इफेक्ट शो होता है. ऐसा नहीं है कि हवा में कोई चीज़ है, नहीं, उसका इफेक्ट शो हो रहा है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि closely related animals are same in morphology and they are represented by grouping in the classification system. फिर classification system में हम उसको group करते हैं. taxonomy, the branch of zoology that deals with that. The hierarchical nature. अच्छा, hierarchical nature क्या है? hierarchy हमने यहाँ भी पढ़ी, और classification में क्या है? hierarchy of relatedness. What does we mean by hierarchy of relatedness? hierarchy याद रखें कि दर्जाबंदी को कहते हैं उर्दू में, कि फ्रॉम टॉप टू बिलो हर जगह पे आप देखें हायरार्की. हम इसको अगर देखें तो प्रोफेशनल हायरार्की हर डिपार्टमेंट में होती है. जो इदारे होते हैं उसमें लाइक फॉर एग्जांपल डीजी होता है, डायरेक्टर होता है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर. अच्छा, हम अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वीसी होता है, फिर डीन ऑफ फैकल्टी होता है, फिर चेयरमैन होता है डिपार्टमेंट का, फिर प्रोफेसर होता है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, स्टूडेंट्स. ये सब क्या है? दिस इज़ हायरार्की फ्रॉम टॉप टू बिलो. इसी तरह ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी from larger groups to smaller groups and then to till the level of individual species there is our hierarchy.
तो हायरार्की क्या है, दर्जाबंदी है. सो हायरार्किकल नेचर ऑफ द नेमिंग सिस्टम इज़ रिफ्लेक्टेड इन ग्रुप्स बिकमिंग मोर इंक्लूसिव एज वन मूव्स फ्रॉम स्पीशीज़ टू डोमेन. जितना आप स्पीशीज़ से डोमेन की तरफ जाएंगे तो ये क्या है, इंक्लूसिव. इट इज़ मोर इंक्लूसिव. इंक्लूसिव मीन ये सबको अपने अंदर इंक्लूड करता जाता है. तो जब आप स्पीशीज़ से स्टार्ट लेंगे और आप जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम तक जाएंगे, किंगडम तक जाएंगे, तो आप सारे एनिमल्स उस एक किंगडम के अंदर आपको मिलेंगे. और फिर ऑल दोज दे रिफ्लेक्ट बैक टू द डोमेन ऑफ यूकेरिया. Okay, so that was all about evolutionary perspective of zoology, and we will be dealing with the next, that is the ecological perspective of zoology. So that's it for today. See you in the next lecture.